Welcome, my dear students. You are studying with YPS Academic Solutions. Today we will solve two questions of coordinate geometry, exercise 7.2. So, question number 3. To conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. As shown in figure 7.12, Niharka runs 1 by 4th the distance AD on the second line and posts a green flag. Niharka runs 1 by 4th the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and post a red flag. What is the distance between both the flags? If Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flags? So, ये 1 मीटर की डिस्टेंस पर चौक पाउडर से ये लाइनें बनाई हैं ग्राउंड में, और ये 100 जो मैंने एफ लिखा है, ये 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं एडी की दिशा में। अब निहारिका सेकंड लाइन पर रन करती है इस दिशा में, तो एन जो मैंने लिखा है वो निहारिका, और इस पॉइंट पर जाकर के वो ग्रीन फ्लैग जो जी से शो किया मैंने, ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर देती है। और प्रीत एर्थ लाइन पर, इस लाइन पर, एर्थ लाइन पर जो है रन करती है इस दिशा में, और इस पॉइंट पर जो है ये पी प्रीत और आर से रेड फ्लैग यहाँ पर पोस्ट कर देती है। तो सेकंड लाइन पर जो निहारिका जाती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1/4 द डिस्टेंस ऑफ ए डी, एंड यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये है 1/5 द डिस्टेंस ए डी ऑन द एर्थ लाइन। So now solution. Let AB is equal to x axis, AB को हमने x axis मान लिया, and AD is equal to y axis, F flower pots and N Niharika and P Preet, G posted green flag, R is equal to posted red flag, RA Rasmi, B to be posted blue flag. So coordinates of G are 2 multiplied by 1, क्योंकि सेकंड लाइन पर जो है वो रन करती है, और AD का 1/4 डिस्टेंस रन करती है, इसलिए 1/4 multiplied by 100, because AD is equal to 100 flower pots at the distance of 1 meter. So AD is equal to 100 multiplied by 1 is equal to 100 meter. तो ये 1/4 डिस्टेंस ऑफ एडी है, इसलिए 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू, ये हो गया जी के कोऑर्डिनेट 2 और ये हो गया 25। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर 8 मल्टीप्लाइड बाई 1, बिकॉज एर्थ लाइन पर रन करती है प्रीत, एंड 1/5 डिस्टेंस ऑफ एडी रन करती है, तो 1/5 इंटू 100 इज इक्वल टू, आर के कोऑर्डिनेट हो गए 8, 20। नाउ डिस्टेंस जी आर, ग्रीन फ्लैग से रेड फ्लैग की डिस्टेंस इज इक्वल टू √ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हियर x2 8 and x1 2, so we, and here y2 is equal to 20 and y1 is equal to 25. So 8 minus 2 whole square plus 20 minus 25 whole square and √ because distance formula D is equal to √ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, and GR is equal to √ ये हो गया 6 स्क्वायर प्लस ये हो गया -5 होल स्क्वायर इक्वल टू √ 6 का स्क्वायर 36
-5 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दिया, √61 मीटर। सो रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग के बीच की डिस्टेंस √61 मीटर हो गई। Therefore, the distance between the flags is √61 meter. B is the position of the blue flag posted by Rashmi in halfway of line segment GR. ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग की जो लाइन है उसको ज्वाइन करने के उसके हाफवे पर जो है ब्लू फ्लैग रश्मि पोस्ट करती है। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ B इज इक्वल टू मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू रख दी 2 प्लस x2 की रखी, x1 की वैल्यू 2, x2 की 8, सो 2 + 8 अपॉन 2, y1 की वैल्यू 25 प्लस y2 की वैल्यू 20, सो 25 + 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ऐड किया 10/2, ऐड किया 45 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड किया 5, इसको डिवाइड किया 22.5। Thus, the blue flag is on the 5th line at a distance of 22.5 meter above it, or along y-axis, or we may say in the direction of AD. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोमस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order. Solution: let A 3, 0, B 4, 5, C -1, 4 and D -2, -1 are the vertices of the rhombus. Area of rhombus is equal to half into product of its diagonals. So diagonal AC is equal to distance formula, because distance formula D is equal to √x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square. तो यहाँ हमने x2 और x1 की वैल्यू रख दी, तो AC is equal to √-1 - 3 whole square plus 4 - 0 whole square. So AC is equal to √, ये हो गया -4 होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 स्क्वायर इज इक्वल टू √32। दोनों का स्क्वायर, इसका 16 हुआ, इसका 16, दोनों को ऐड किया तो √32 इज इक्वल टू, अब 32 को हमने लिखा 16 × 2, 16 को हमने √, से बाहर ले लिया तो हो गया 4√2 यूनिट्स। Now diagonal BD is equal to √-2 - 4 whole square plus -1 - 5 whole square. यहाँ भी वैल्यू रखी x1 x2 y1 y2 की, ये x1 की, ये y1 की, ये x2 की, ये y2 की। सो इज इक्वल टू √-6 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √36 + 36। इसका भी स्क्वायर 36 हो गया, इसका भी स्क्वायर भी 36 हो गया, दोनों को ऐड किया तो √72। अब 72 को जो हमने 36 × 2 लिखा तो 36 को हमने √, से बाहर ले लिया इज इक्वल टू 6 √2 यूनिट्स। Therefore, area of the rhombus ABCD is equal to half AC multiplied by BD. So this is equal to half into 4 √2 AC की वैल्यू, BD की वैल्यू 6 √2 is equal to half into 6 और 4 का मल्टीप्लाई 24 multiplied by √2 multiplied by √2 is equal to 2 से 24 को कट किया तो 12 हो गया इंटू और √2 और √2 का प्रोडक्ट हो गया 2, क्योंकि √ हट जाएगा, फिर 12 और 2 का मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट्स। Hence area of the rhombus is 24 square units.
यदि इन दोनों क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और इसके अलावा भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। सिस्टम या मेथड को इम्प्रूव करने के लिए सजेशन दे सकते हैं, आगे किस चैप्टर या टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए वो भी सजेशन आप दे सकते हैं। और आप कमेंट्स करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।